कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया है एसेज के ऊपर? तो है प्लीज रेज योर हैंड। पूनम, रेखा, वंशिका, एनीवन एल्स ब्रेनस्टॉर्म किया हो, लिखा हो? ओके। संदीप आपने क्या? No, sir, I didn't get a chance. Right. Okay. So as I talked about the essay last time also, okay, great. Which one, Vanshika? Second one. Okay, great, great. Please send it to me. Right. As we discussed last time also, I'll discuss one essay जिसमें we can write arguments and counter arguments together side by side. ठीक है. This time मैंने दो ऐसे दिए उस टाइप से हैं. One like होगा जिसमें we had this socio-economic essay, है ना? And second is philosophical essay, but we'll try to write it in the form जहाँ पे arguments, counter arguments and examples एक साथ लिखेंगे. Compartmentalize नहीं करेंगे, as we discussed also, कि ताकि it will help us कि when we write two essays तो हम दो different verticals पे उन essays को लिख सके. थोड़ा difference आए दोनों essay में, नहीं तो दोनों essay more or less similar हो जाते हैं when we are writing philosophical essay. जैसे आज वाले भी अगर आप दोनों ऐसे देखोगे तो somehow related to resource crunch. पॉवर्टी वाला ऐसे भी है तो वो भी रिसोर्स क्रंच से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, एंड व्हाट वी हैव वाला ऐसे भी है तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हाउ वी कैन वर्क, है ना? तो कुछ कुछ चीजें दोनों में सिमिलर आ जाती है. इवन वन इज सोशियो इकोनॉमिक एंड द अदर वन इज द फिलोसफिकल ऐसे, राइट? सो एंड दैट इज ऑल्सो समटाइम्स इट पोजेज अ चैलेंज इन राइटिंग कि दोनों ऐसे बहुत सिमिलर होगा. फर्स्ट ऐसे पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर को मजा आएगा, सेकंड ऐसे में एग्जामिनर बोर हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स द पर्सन हैज रिटन. ठीक है. तो इन दिस वे if we are writing, although we are writing the similar points, if we are writing from a different approach, तो writing style change करके we can also have a good impression, good impact on the examiner, right? So first I'll discuss the second essay, right? या फिर कोई है जिसने यहाँ पे लिखा arguments and counter arguments साथ साथ, या फिर चलो arguments ही आप बता दीजिए, right? Who would like to start सेकेंड ऐसे? पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. Do what you can with what you have where you are. ठीक है. This was the topic of the essay. Vanshika has raised her hands and Rekha. Okay. Let's start with Vanshika. No? So I have started the essay with India's economic situation before independence. I have written with low rate of savings, majority population in agriculture, literacy rate at 17% and few large industries, inadequate infrastructure and poverty and unemployment gripping the nation. India emerged from an economy of per capita output growth of 0.5% in the first half of the 20th century to one of the top five fastest growing economies of the world. We utilized what we had at hand in the best practicable way through planning. Doing what we can with what we have and where we are is the key. In the search for perfect movement, resources and opportunities are wasted and capabilities are overlooked. Okay. Good. Good way to start in certain senses. Right. That So your voice is little faint. is it faint for everyone or? Sir, I think it is for everyone. How is it now? Better, sir, better. Better. Yes. Okay. I guess I am using external cam ना, so that is the reason. अभी ठीक है ना? Clear अब? Better, sir. Okay. Thank you.
बता दिया किसी ने, है ना? ठीक है, sorry Vanshika, you can continue. You started with like India's per capita growth from minimal to increase in it, right? Yes, sir. By using whatever we had, whatever the resources we had, right? A Yes, sir. good way to start. And then after introduction, what was your approach? Then, sir, I started with mythology, examples from mythology. Okay. Like Jatayu's story when he tried to save Sita when she was being kidnapped by Ravan. Then, secondly, sir, I have used Guru Gobind Singh Ji's quote while this battle of Chamkaur, Mm-hmm. when 46 soldiers were against some 10 lakh Mughal army. Yes. What was the quote? So it was that Oh, that was sir, the I have one not, I have fighting not. one with 1 lakh, something like that, right? Yes, sir, but sir, I have not used the exact quote. But I Okay. have narrated a small story in 4 to 5 lines. That's it. Okay. Fine. Okay. Yes, sir. And then. Then, sir, from history, I have taken certain examples, and then, sir, I have talked about the benefits, how we can use these things in political sphere, economic sphere, social sphere, how psychologically people should evolve in a sense that they should use whatever resources they have in hand. And then, sir, in international sphere, how the global south is evolving by using whatever resources they have at hand. And then, sir, I have concluded with certain examples from history, like Hitler and Laden and other people who have used their resources but in a bad sense, and then how it was devastating for the entire humanity. Okay. Yes. Okay, kind of, little basic essay, but I guess this was your first essay, right? Yes, sir. Okay, it's fine. Right, like it was a kind of a philosophical essay, and your essay now is going more on socio-economic essay, right? You have, I guess, used the pestle approach, right? Political, economic, social, right? Yes, sir. That is you've used. Okay, this is also one way to write the essay. But when the essay is on philosophical side, na, so if you are writing a more on a socio-economic line, so it will fetch average marks. Okay, we are looking for higher, marks in this particular essay. So okay, I'll explain whenever, and then you can write it. Send me whatever you've written, right? Okay, sir. And we don't rewrite this essay. Upcoming essays we will work on the both the aspects, right? Sure. As well as this aspect, right? Okay, sir. Okay. Thank you. Yeah, anyone else would like to weigh in? Yes, Rekha. गुड आफ्टरनून सर। यस सर, मैंने ना एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स तो नहीं लिखे हैं, बट मैंने फ्लो जो होगा ऐसे का वो बता देती हूँ आपको, ठीक है? Sure. यस, तो जैसे मैंने जो सोचा वो इंट्रोडक्शन एग्जैक्ट नहीं था, बट ये था कि दशरथ मान जी का एग्जाम्पल लिख सकती हूँ, बट इससे मैं बेटर सोच रही थी। उसके बाद मैं आती हूँ कि थीम जो है इस ऐसे का वो क्या कहता है कि परफेक्ट का वेट नहीं करना है, आपको परफेक्शन की तरफ जाना होता है। परफेक्शन के साथ जाना होता है? मतलब आप सब चीजें अलाइन होंगी आपकी जिंदगी में तब आप कुछ करोगे, ऐसे नहीं होता कि आपके पास जो अवेलेबल होता है उन रिसोर्सेज का आपको यूज करना होता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ ठीक है। तो बॉडी में सबसे पहले मैं इसी चीज को थोड़ा लिखूंगी कि व्हाट इज इस कोड का मतलब क्या है, कि आपको मिनिमम चीजों के साथ आप कैसे करोगे, अवेलेबल के साथ कैसे होता है, तो ये सब चीजें की लाइफ में चीजें परफेक्ट नहीं होती। फिर मैं बताती हूँ, फिर लिखूंगी मैं कि जब ये चीज है इसका जब ऐसा होता है कि जब आप व्हाट यू कैन के साथ रहते हो, मतलब करते हो, तो आपके क्या आउटकम अचीव होते हैं, अचीवमेंट और कॉन्सिक्वेंसेज किसके लिए, सोसाइटी के लिए, एज अ कंट्री के लिए और एज अ वर्ल्ड के लिए, इससे क्या आउटकम होते हैं। तो आप जो एग्जांपल उन्होंने दिया कि इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ हुई या फिर पॉलिटिकल लेवल पे कैसे अचीवमेंट्स हुई, सोसाइटी ने कैसे इम्प्रूव किया, तो वो सब आप। उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट है कि
हाँ, कि नेगेटिव आउटकम जब आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, तो नेगेटिव आउटकम क्या क्या हो सकते हैं उसके एक या दो एग्जांपल। इससे क्या होगा कि स्टॉप हो जाओगे आप, प्रोग्रेस रुक जाएगी, इनोवेशन नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, इंडिविजुअल के लेवल पे ग्रोथ नहीं होगी। फिर जो बट वो थर्ड काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं फिर। हाँ, एक्चुअली काउंटर मैं आगे और लिखूंगी इसका। अच्छा, हाँ, इसके बाद था कि वाई एक्चुअली लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। सब अगर उनके पास होता है थोड़ा बहुत तो उसे क्यों नहीं स्टेप लेना चाहते हैं, तो ये है कि रिस्क नहीं लेना चाहते, फेलियर से डरते हैं, ठीक है, स्टेटस क्यों रखना चाहते हैं, और कई बार मतलब वो कहते हैं कि इनकेपेबल होते हैं, इस तरीके की चीजें। काउंटर जो मैंने दिया है इसमें कि अग, जब आप करोगे जो आपके पास है उसका आप नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कि अगर किसी के पास पावर, कोई पावरफुल है तो वो किसी वीक को दबाए नहीं। पावर होने का मतलब ये नहीं होता। इंटेलिजेंट अगर कोई है तो उस इंटेलिजेंस का सोसाइटी को हार्म करने के लिए यूज ना करे, और अपनी मनी का किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए यूज ना करे। उसके बाद ये तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ज्यादा गलत नहीं चलेगा, राइट? यहाँ पे ये नहीं है ना कि दैट इज नॉट अबाउट की यूज ऑफ पावर, ठीक है? ये यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास मिनिमल रिसोर्सेज हैं, है ना? यस यू सर, आर हैविंग मिनिमल रिसोर्सेज एंड देन यू हैव टू यूज इट विद इन एंड मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, यस राइट? सर, ये कहना चाह रहा है ना कि जो है उसमें खुश रहो और उससे मैक्सिमम अपनी वो करो। तो यहाँ पे ये तो कहीं बोल ही नहीं रहे ना कि कोर्ट में कहीं ये चीज तो है ही नहीं कि आपके पास अगर पावर दी जाए तो उसका सही यूज करना, राइट? यहाँ पे ऐसा नहीं है, एम्पल का कोई वो है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे यस एक लिमिटेड है और उसी लाइन पे लिखना है। आप जो बोल रहे हो पावर, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, मनी, ये तो है ही नहीं ना, यस राइट? सर, पावर, मनी और ये तो है ही नहीं। तो यस सर, नहीं है तो करना है। तो काउंटर आर्गुमेंट आपका जो पहले आपने जो नेगेटिव वाले दिए थे, यस सर, दोज वुड बी द काउंटर आर्गुमेंट्स। आप जो काउंटर आर्गुमेंट्स दे रहे हो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है? ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ गया यस कहाँ पे सर, क्या यस करना सर, है। यस सर, आ गया ऐसे में सर, कहीं भी यस, आपसे आपको देखो काउंटर आर्गुमेंट क्या होता है, जो एक्चुअल ऐसे की थीम है उसके अगेंस्ट। यस सर, एक्चुअल ऐसे में कहीं ये तो कहीं भी नहीं दिया हुआ कि यूज वाइज यूज ऑफ पावर और समथिंग लाइक दैट, यस क्योंकि सर, यस सर, पावर, मनी तो है ही नहीं। यहाँ पे बात आ रही है अभाव की, राइट? यू आर ऑलरेडी हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड यूजिंग दैट, ठीक है? उसका है यहाँ पे, ठीक है? यस, तो वो जो पहले आपने दिए दोज वुड बी द काउंटर आर्गुमेंट, राइट? ठीक है ठीक है? सर। फिर प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कि कैसे हम कर सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कोट है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक फॉरवर्ड। डू नॉट स्टॉप, यस, है ना? हाँ, अच्छा कंक्लूजन अच्छा है। आपने एक वो भी अच्छा दिया था कि हम क्यों नहीं करते, राइट? व्हाई पीपल डू नॉट यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज। वो पार्ट एक्चुअली मैं जब ऐसे सोच रहा था तो आई स्किप्ड, इट वाज अ गुड थिंग, ठीक है? प्रेस्क्रिप्शन इज गुड, ठीक है? कैसे किया जा सकता है, दैट इज आल्सो गुड एस्पेक्ट। एनीवन एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? एनी कोई पॉइंट्स है किसी के पास इस ऐसे के ऊपर? यस यस पूनम, आप यू कैन स्पीक, राइट? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बोलिए। सर एक तो मेरे को डाउट ये था कि इसका काउंटर बोलिंग होगा कि इट इज नॉट जरूरी नहीं है कि हम कर वो जैसे अपोजिट होता है ना कि जो हमारा कूट है इसमें हम कह रहे हैं कि करो, इसका अपोजिट ये नहीं होगा कि जरूरी नहीं हर बार करो। तो नहीं, दैट इस केस में वो काउंटर नहीं होने वाला। ये वैसे वाला नहीं है, ये स्ट्रगल वाला नहीं है ना, राइट? वो तो जैसे हम पहले हमने वो ऐसे किया था ना, वो क्लाइंब वाला, राइट? है ना? द लाइफ इज, यू नो, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब बट लाइफ इज नॉट टू स्लिप, या फिर वो शिप वाला है ना। वो तो उसका देखिए, यहाँ पे मोर आप ऐसे का टॉपिक देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये हो गया, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव, वेयर यू आर, है ना? जहाँ पे हो उसमें जितना है, उसमें जितना कर सको उतना करो। इट इज नॉट मच अबाउट स्ट्रगल, है ना? तो आप जो काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हो, आपकी ना वॉइस थोड़ी गूंज रही है, एक इको कर रही है वॉइस थोड़ी सी। नो अदर ऑप्शन। ईयरफोन्स अभी नहीं है भी आ आपके रही पास? है,
ईयरफोन्स नहीं है आपके पास? नहीं सर, आप टाइप कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं अवेलेबल ईयरफोन चाहिए अवेलेबल है? हटा के है। ओके ईयरफोन सर, ट्राई करेंगे एक बार, या श्योर सर। या फिर कैबिन में है ना आप अभी? आई गेस कैबिन की वजह से भी वो हो रहा होगा, इको हो रही होगी साउंड, राइट? अब सही आ रही है सर? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ओके सर, नहीं मैं उस वे में नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे इसका हम वैसा वो डायरेक्शन में नहीं लिख सकते कि इफ आई डोंट, मतलब कि अगर हम नहीं करें, सपोज कि जितने भी हमारे पास मिनिमल रिसोर्सेज, इट इज आवर चॉइस दैट वेदर वी वांट टू डू और वी डोंट वांट टू डू. If we do, so we get higher progress and evaluation. If we don't do, we are happy with what we have right now. So वो वाली dimension touch करने के काउंटर लिए. आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ ना, काइंड ऑफ, है ना? जिस Okay. जो है उसमें खुश रहो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एसेंस ऑफ दिस थीम ना, नॉट द काउंटर आर्ग्यूमेंट ना। Okay. Okay. हाँ, but then वो dimension miss हो गई, फिर ये कह सकते हैं हाँ वो counter. डिमेंशन या तो मिस हो गई, बाकी हाँ वो डिमेंशन सोच सकते हैं, बट ज्यादा उस पे है नहीं। और वो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं कि वो काउंटर आर्ग्यूमेंट वैसा है ना कि नॉट अबाउट कि स्ट्रगल पे चला जाता है, जैसे आप जो भी बोल रहे हो, राइट? तो इफ यू लुक इनटू इट कि हाँ यार नहीं करना मेरे को, जो है उसमें भी नहीं करना, है ना? जो उसमें भी खुश नहीं रहना। इट इज मोर अबाउट वट एवर यू आर हैविंग, मेक मोस्ट ऑफ इट और बी हैप्पी विद इट ना। और सर ये वाली डिमेंशन दैट कि अगर हम कुछ नहीं करें, बिकॉज आई वाज फाइंडिंग वन डिमेंशन कि हम नहीं करें तो वो वाली डिमेंशन एक्सप्लोर कर रही थी, तो उसमें 2-3 और पॉइंट है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. एक बार बताइए, फिर आई विल लुक इनटू इट। मुझे नहीं वो लग रहा, बट आप बताइए आप। ओके, जैसे कि अगर हम कुछ नहीं करते तो भी समटाइम हमारे कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाते हैं, उसकी डायरेक्शन, कि इट्स नॉट कि बहुत बार हम रॉन्ग चूज नहीं कराएंगे, कि मीन बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज टू स्टॉप समटाइम वेयर यू आर इफ यू आर डूइंग समथिंग वो. एंड इससे ये भी होगा कि एवरी टाइम यू आर रनिंग बिहाइंड, यू आर जस्ट विद दिस कोड की डू डू डू, यू नहीं नहीं नहीं, गेट. ये तो वही स्ट्रगल वाला ही हो गया ना फिर से, राइट? इफ यू आर रनिंग बिहाइंड एवरी टाइम रेस्ट नहीं, ये वैसा थीम नहीं है इस ऐसे की, राइट? थीम ऑफ द ऐसे इज नॉट जो आप सोच रहे हो, ये वो कंपल्शन वाला थीम नहीं है ना। इट इज अ सटलर थीम। एनीवन इफ लाइक वांट टू काउंटर मी और हर, अगर है यहाँ पे आपको किसी को लगता है तो बी फ्री, है ना? कुछ भी आपको लगता है, या मेरे आर्ग्यूमेंट्स में किसी को कोई इशू लग रहा है, या पूनम के आर्ग्यूमेंट्स में किसी को इशू लग रहा है, या फिर रेखा का जो आर्ग्यूमेंट था किसी को सही लगता है, तो प्लीज बी ओपन, है ना? कोई है? एनीवन वुड लाइक टू सपोर्ट एनी ऑफ पूनम्स और रेखा's आर्ग्यूमेंट इन दिस? फील फ्री। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी लग रहा है। So there was this one counter argument that came to my mind. Matlab earlier that I haven't brainstormed, it's just I'm doing it on extempo basis. So one dimension of counter argument is like, why even people have to do? What is the need of doing anything? What is the point of breaking the status quo? That is what almost Poonam is saying, right? Poonam, आप भी यही बोल रहे हैं ना? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. What is the need of doing something? एक्चुअली ये ऐसे ना, देखो ऐसे के बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, तो आई कैन नॉट से योर आर्गुमेंट्स आर टोटली रॉन्ग, मैं नहीं कहूँगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ये ऐसे की थीम नहीं है, करना है, राइट? ये यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, जब ऐसे आते हैं रिगार्डिंग स्ट्रगल और समथिंग, कि लाइफ इज अबाउट स्ट्रगलिंग, yes, as Ruchika is saying that the essay is more on not being limited by limitations. Yes, essay का थीम जो है that is कि आप के ऊपर जो limitations है उससे आपको लिमिट नहीं होना है, right? That is one thing. It is not कि आपको स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। So then it will be always in that direction कि बस करना है, मतलब कि I would just want to ask you कि then how it could be make multi-dimension.
मैं बताऊंगा इसका जो मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि इस ऐसे पे मैंने ठीक ठाक टाइम लगाया है, ठीक है। दैट इज वाई मुझे आपके आर्ग्यूमेंट्स उतने वैलिड नहीं लग रहे हैं, ठीक है। माइट भी, क्योंकि मैंने टाइम जरूर लगाया लेकिन मैंने भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया डायमेंशन, सो माइट बी योर आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो, बट यहाँ पे वट एवर इज रिटर्न ना, वट एवर इज इन द थीम, उसमें बेसिकली है कि आपके ऊपर लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन से आप अपने आप को लिमिट मत करो, जो भी है उसको यूज करो, ठीक है। इफ यू हैव अ पेन, है ना, और आपको किसी को मैसेज देना है लेकिन पेन में इंक नहीं है, तो इनोवेट करो, ठीक है। दिस इज द थीम, राइट। अगर आपके पास पेन है, इंक नहीं है और मैसेज देना और फिर भी आप इनोवेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते व्हाई टू इनोवेट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, कि आपके पास आटा है, ठीक है, आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, और यू आर स्टिल हैव समथिंग, और इनोवेट करके आप खाना ना बनाओ, राइट। दिस इज मोर ऑफ द बेसिक थिंग पे, राइट। आई होप समझ में आ रहा है, मे बी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, माइट बी, बट या फिर आप लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट। नहीं सर, इट्स मेकिंग सेंस, राइट, इट मेक्स सेंस, राइट। यस यस रेखा आप बताइए। सर आप जो कह रहे हो वो सही है एक्चुअली। ये ऐसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड पे है और उसकी थीम के अकॉर्डिंग ही वही जाएगा, जैसे उधर नहीं जाएगा ये संदीप ऐसे भाई की थीम जैसे इज कह मोर ऑन रहे पॉजिटिव साइड ना, हैं। ये यस बात सर। सही है कि करना चाहिए हमें, है ना, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, ये इसके ऊपर ऐसे रेदर देन उस पे, ठीक है। ओके, आई थिंक कि मैं अपने वाला जो पॉइंट्स आई विल गिव देम टू यू, ठीक है, देन यू मे डिसाइड, ठीक है। एंड अगेन रेखा, पूनम, संदीप, आपके जो पॉइंट्स हैं दे आर नॉट टोटली इनवैलिड, बट ऐसे का थीम से थोड़ा बाहर जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैं आई वुड लाइक यू नो स्टार्ट और इंट्रोड्यूस विद दिस, एक है, इसका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, विलियम कामक्वाम्बा, ठीक है, मलावी अफ्रीका में एक लड़का था। देयर इज अ बुक ऑन दिस, द बॉय हु हार्नेस्ड विंड, मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द एसे विद हिम, जैसे मांझी द माउंटेन मैन से शायद रेखा वांटेड टू स्टार्ट, है ना, तो वो ठीक है, वो भी एक अच्छा है, बट ये थोड़ा सा इंटरनेशनल एग्जांपल है। This story is about a boy in Malawi, ठीक है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स के, उसके फादर्स के पास बहुत थोड़े से खेत हैं, बट रियल स्टोरी, ठीक है, बट सीवियर ड्रॉट और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट और फूड राइट्स होते हैं। उसके पास स्कूल जाने तक के भी पैसे नहीं होते, बट वंस ही सी अ बुक इन द लाइब्रेरी जहाँ पे विंड मिल का जिक्र है, तो वट एवर रिसोर्सेज ही हैड इन दिस, वो बाईसाइकिल का टायर यूज करता है, ठीक है, पुराना मोटर वगैरह है उसको यूज करके ठीक करके ही हार्नेस द विंड फॉर मेकिंग अ विंड मिल इन दैट विलेज, जहाँ पे पॉसिबिलिटी तो थी ही नहीं, एंड ही यूज्ड टू टेक द वाटर आउट फ्रॉम द वेल, है ना, एंड टू इरिगेट द फील्ड्स। तो मलावी जैसे एक छोटे से कंट्री में जहाँ पे ना कोई सपोर्ट था, वहां पे इसने किया, दिस इज वन थिंग। तो आप इससे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अच्छी स्टोरी है, कहीं भी यूज कर सकते हो स्टोरी को। इस ऐसे का मैंने प्रॉपर राइटअप भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो आफ्टर द सेशन आई विल आल्सो शेयर द राइटअप। अभी मतलब बेसिक राइटअप है, उसको थोड़ा रिफाइन करके आई विल शेयर, ठीक है। तो ये स्टोरी मैंने पूरा 120 वर्ड्स में मैंने स्टोरी भी लिखी है, तो दैट इज हाउ यू कैन राइट द स्टोरी एज वेल, ठीक है। और वो मैंने इसलिए भी लिख के दिया है कि अगर और भी कोई स्टोरी आप लिखते हो तो आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐड करूंगा इसके बाद कि कोट का मतलब क्या है, ठीक है। देन आई विल गो फॉर आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे हेलन केलर का एग्जांपल है। हेलन केलर के बारे में सबको पता होगा, शी वाज डेफ एंड म्यूट, है ना, ब्लाइंड एंड डेफ, है ना, बट शी प्रोग्रेस्ड, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर वो उस लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर लेती, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी है, लेकिन अगर एक्सेप्ट आ जाता कि हाँ मेरे अंदर इतनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो इट शी वुडंट हैव ग्रोन टू द लिमिट्स जो उनको जहां तक वो पहुंचे, ठीक है। देन सेकेंड इज इनोवेशन। ऑब्वियसली अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो यू विल बी एबल टू इनोवेट, राइट।
जैसे एग्जांपल है अपोलो 13 की स्टोरी, अगर आप लोगों को पता होगी तो अपोलो 13 में इट वाज इन द स्पेस, है ना, एंड देयर वर सम मेजर इश्यूज एंड इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अपोलो 13 मूवी भी है, अच्छी है, ठीक है। तो उस इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो एस्ट्रोनॉट्स वापस आ पाते, ठीक है। बट ड्यू टू दिस इनोवेशन, द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन दे हैड, तो ड्यूरिंग द मतलब विद इन द स्पेस शटल ओनली, उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनकी वजह से दे मतलब रिपेयर्ड इट एंड दे केम बैक सेफली, ठीक है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हेन वी आर लाइक इनोवेटिंग, मतलब कि वो एट द ऑन द टोज, है ना, तो क्या होता है कि समटाइम्स इट मे नॉट वर्क। तो इसके लिए क्या होगा कि इट शोज कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑन द पार्ट ऑफ नासा, है ना। अपोलो 13 जो है, ऑल्दो इट वाज इनोवेशन और बच गए, व्हाट इफ दे कुडंट हैव बीन सेव्ड, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ इनोवेशंस जो होती हैं दैट मे और मे नॉट वर्क एवरी टाइम, राइट। सो दिस इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट। देन रिड्यूसेस प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। अगर आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उससे आप शुरू करेंगे, है ना, तो लोग क्या प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे एंड अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट मिलेगा, अर्ली स्टार्ट का। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर में छोटे छोटे वो हैं, क्या बोल इंडस्ट्रीज हैं, राइट, या फिर बिजनेसेस हैं, जो अपने पास जितना जो कुछ होता है वो पहले बड़ा ग्रो करके बिजनेस स्टार्ट करने की नहीं सोचते, दे स्टार्ट विद द मिनिमल अवेलेबल थिंग्स एंड देन दे ग्रो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना मिनिमल स्टार्ट करके आगे तक पहुंच पाते हैं। और ठीक है, यू विल हैव एग्जांपल्स, इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, गांधी जी, है ना, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इवन विद द मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, राइट। तो दैट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया, ही थॉट किया 1919 द सिचुएशन था कि उसको उनको लेके आना पड़ा, बट more or less it had to be taken back, it was kind of total failure तो नहीं कहेंगे, ठीक है, but it was a little वो, क्योंकि the time was not ripe और जो उनके हाथ में था उसी से उन्होंने शुरू कर दिया, तो it has to be called back, lack of time to prepare, हाँ? तो this is one of the counter argument. Then contentment and mental peace. yes रेखा। सर ये एनसीएम वाला थोड़ा ऐसे नहीं लगेगा कि आपसे अच्छा नहीं लगेगा एग्जामिनर को पढ़ने में? क्यों नहीं लगेगा, मुझे तो अच्छा लगा तो इसलिए लिखा मैंने, बाकी हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एनीवन एल्स जिनको ये लगा कि ये थोड़ा एग्जांपल आउट ऑफ वो चला गया? यस, पार्टीशन का एग्जांपल इन द सेंस नॉन प्रिपेयर्डनेस, हाँ पार्टीशन का एग्जांपल लिख सकते हैं, इट्स गुड एग्जांपल। सर इसमें सर वी कैन एक्चुअली पुट द एग्जांपल्स ऑफ बूटस्ट्रैप्ड एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स जो yes, फंड वो तो लिख ही सकते हैं, वो तो मैंने बताया, बट या पार्टीशन इज अ गुड, मतलब इस सेंस में हाँ, कि पार्टीशन वाज अ लिटिल वो ना कि ठीक है गांधी जी ने सोचा अब जो है वो कर दो या व्हाटएवर, है ना, एंड बट वी हैड रिपरकशंस। यस, ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल, दे हैव टू टेक इट बैक। यस, नहीं ओवरऑल 1947 पार्टीशन भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। यस, आई गेस प्रभजोत आपने हैंड रेज किया था, आप हैं प्रभजोत? सॉरी सॉरी, प्रभजोत हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभजोत, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू, आपने अनम्यूट किया हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला अगर आपको लग रहा है तो यू कैन, बट देन कंटेंटमेंट एंड मेंटल पीस, ठीक है, जो मतलब की बात कर रहे थे कि मिनिमल जो अवेलेबल है। यस यस प्रभजोत, आप अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आपको, म्यूटेड हो आप। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, हाँ जी आप ठीक है। हाँ जी, वो जो पार्टीशन वाली एग्जांपल बोल रहे थे उसमें एमडीएच मसाला का जो था ना उसको बीच में वो मतलब
कैसे, हाईलाइट कर सकते हैं। क्या था उसका? पार्टीशन पार्टीशन जब हुआ था 1947 में, हम्म। तो मतलब जो MDH मसाला के ओनर थे ना, हाँ मुझे जी, उनका नेम नहीं पता है अभी, वो माशे समथिंग समथिंग, कुछ था माशा उनका लाइक। डीएपी वाला वाले जो हाँ एमडीएच है तो ना। यस, तो उन्होंने एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया था। वो रिफ्यूजी थे। हम्म। तो जैसे पार्टीशन हुआ और वो मतलब पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो उन्होंने एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया। दैट एंड इज फाइन, बाद में, हाँ बाद में, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद वो इंडिया में आए होंगे तो उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत ही कम होंगे ना। बट उन्होंने फिर भी मतलब जो था उनके पास उसको यूज करके एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो आर्गुमेंट इज गुड बट काउंटर आर्गुमेंट हम साथ साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, दैट इज व्हाई दिस ऐसे इज गेटिंग अ लिटिल मोर, है ना। आर्गुमेंट जी, ठीक है ना इसमें, बट काउंटर आर्गुमेंट में ऐसा अगर कोई एग्जांपल्स हो जहाँ पे कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने बहुत कम से ट्राई किया स्टार्ट करने का विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड थिंग्स एंड दे माइट नॉट गेट सक्सीडेड, ना, उस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसमें वो भी आ सकता है कि जैसे लैंड वगैरह लोगों को दी थी ना, हम्म। बट लाइक उसको कैसे नहीं कनेक्ट आएगा। कैसे करेंगे, उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे से भटक जाएगा, राइट। ऐसे यूज कर सकते हैं कि क्या बोलिए वो बोलिए। कुछ कुछ माल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो गए, तो जो था उसको भी खत्म कर लिया, नॉट कुछ भी। नॉट मच, नॉट मच। ओके। यहाँ पे मतलब देखो फिर तो अगर मतलब हम बात करें कि गलत हो रहा है, समथिंग रॉन्ग, करप्शन एंड एवरीथिंग, तो ये तो फिर बहुत उसमें चला जाएगा ऐसे ना, बहुत ज्यादा जी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाएगा, है ना। मतलब हम ये नहीं कह सकते ना, जो है उससे हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर करप्शन होता है इसकी वजह से कर नहीं पाते, तो दिस इज फिर इसके काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट में, सॉरी, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी लाइक किसी पर्सन की एग्जांपल हाँ, लिखनी हो पड़ेगी। अगर हो तो समथिंग लाइक दैट, हो तो दैट वुड बी बेटर। जी जी, ठीक। मूविंग अहेड, ठीक है, मिनिमलिज्म को प्रमोट करता है, मिनिमलिस्टिक जो है उसमें खुश रहो, राइट, बट एट द सेम टाइम दिस थियरी इज समटाइम्स एंटी ग्रोथ, है ना, क्योंकि जब हम मेंटल पीस और कंटेंटमेंट की बात करते हैं तो फिर ग्रोथ के लिए ज्यादा स्ट्राइव नहीं करते, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है, जो कि मतलब कि पूनम का कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट था कि क्यों करना है, राइट। तो ये भी तो है ना कि जो है उसमें खुश रहने की जो आदत है, या जो है उसी को यूज करने की जो आदत है, वो कहीं ना कहीं वी डोंट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, है ना, मीडियोक्रिटी को भी प्रमोट करता है वो, ये जो पर्टिकुलर कोट है ये मीडियोक्रिटी को भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। देन वे आउट इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, ना, जब बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होता है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या था, जो भी अवेलेबल है उससे आप बाहर निकल जाइए, अपने आप को बाहर निकालिए। सो वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मलाला, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस बट वट एवर शी हैड शी गॉट आउट, बट एट द सेम टाइम मलाला वुड नॉट हैव बीन मलाला, या फिर मलाला वुड नॉट हैव बीन दैट फेमस विदाउट द ह्यूज इंटरनेशनल सपोर्ट शी गॉट, वो जो कि मिनिमलिस्टिक नहीं था, इट वॉज वे मोर देन वट शी हैड ओरिजिनली, ठीक है। आई होप यू आर एग्रीइंग विद व्हाट आई एम सेइंग, राइट। अगर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है आपके पास, इफ यू आर थिंकिंग कि जैसे एनसीएम वाला यू डिडंट एग्री, तो आई टोटली एम फाइन विद इट। इसी तरह कोई भी अगर आपका डिसएग्रीमेंट है तो बी ओपन, क्योंकि ऐसे का लिखने का जो तरीका है दैट आई ब्रिंग इट डेलिबरेटली इन दिस वे ओनली, है ना। देन कम्युनिटी एंड रिसोर्स पूलिंग है, ठीक है, अमूल का एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है, बट इसका भी एक इश्यू रहता है हमेशा, जो कॉपरेटिव्स हैं दैट इज काइंड ऑफ स्लो ग्रोथ, है ना, एंटी कैपिटलिस्टिक होते हैं, मैं कैपिटलिस्टिक होते हैं, मैं कैपिटलिज्म को यहाँ पे प्रमोट नहीं करने की बात कर रहा हूँ, बट एंटी कैपिटलिस्टिक का मतलब है कि जो कॉपरेटिव्स होती है दे आर इनहेरेंटली नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ ह्यूज ग्रोथ, ठीक है। अमूल कोऑपरेटिव बहुत ग्रो कर गया, बट मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स होते हैं वो उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना उनका पोटेंशियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि whenever we are pooling resources from a community,
है ना। तो कुछ लोग बहुत मेहनत करेंगे, कुछ लोग मेहनत नहीं करेंगे, एंड दोज हु आर नॉट वर्किंग अप टू द मार्क दे विल बी पुलिंग द अदर्स डाउन, राइट। तो कुछ लोग, तो सबका एटीट्यूड सेम नहीं हो सकता, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल सेम नहीं हो सकता व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव्स। तो उसकी वजह से क्या है कि जो कोऑपरेटिव्स में है कुछ लोगों की जो ग्रोथ है वो हिंडर होती है, राइट। देन इट ब्रिंग्स प्रैग्मेटिक लीडरशिप, है ना। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है लीडर्स की, राइट। नेल्सन मंडेला, उनके पास जो भी रिसोर्सेज थे एंटी अपार्थाइड उसमें, एंड वट एवर ही हैड स्टार्ट किया, एंड साउथ अफ्रीका इज ओवरऑल अ गुड डेवलपिंग इकोनॉमी टुडे, ठीक है। एट द सेम टाइम वट एवर दे हैव, वट एवर दे डू, जितना है अगर वो यूज करेंगे तो फ्यूचर का विजन बड़ा नहीं होता, एंड दे माइट यू नो एंड अप फ्रेमिंग पॉलिसीज जो कि हार्म करे। फॉर एग्जांपल माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है। अगर आप को नहीं पता है क्या है ग्रेट लीप फॉरवर्ड तो पढ़ना जरूर, ये आप बहुत सारे एसेज में लिख सकते हैं, एंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, राइट। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ऑफ माओ, उसमें क्या है बेसिकली, ही ट्राइड टू वट एवर एग्रीकल्चरल इनपुट और आउटपुट ही हैड, उससे डायरेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ही ट्राइड एंड ही फेल्ड, ठीक है। तो जितना है उसको यूज करेंगे तो समटाइम्स वो लैक ऑफ फ्यूचर विजन की वजह से इट बैकफायर्स। देन सेल्फ रिलायंस, है ना। सेल्फ रिलायंस इज अ गुड थिंग दैट कम्स विद दिस अप्रोच वट एवर वी हैव, जो हमारा क्वेश्चन का अप्रोच है। बट स्वदेशी एग्जाम्पल हो गया, बट लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल कैन वी एक्सेसिव फोकस ऑन नेशनलिस्ट, हाँ यस यस वही लैक ऑफ, आप कौन से पॉइंट की बात कर, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे बिल्कुल डाल सकते हैं लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में हम डाल सकते हैं। मैंने एक्चुअली वो वाला जो आपका पॉइंट है वो यहाँ पे डाला है 8th में, सेल्फ रिलायंस में, है ना। स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस के चक्कर में हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हुआ बिफोर 1991, ना। तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ रिलायंस के चक्कर में, इंडिया फेस्ड like Indian economy couldn't grow till 1991 to that उस लेवल पे जिस लेवल पे it should have grown, right। हाँ पिछले में भी आप लिख सकते हो, that is up to you। examples तो अच्छा example है। then continuous improvement, ठीक है। Kaizen is a Japanese philosophy, ठीक है, which talk about slow and continuous improvement, that is the theme of the essay। but at the same time जब कॉन्टिन्यूस एंड स्लो इंप्रूवमेंट होती है किसी भी चीज में तो ब्रेक थ्रू इनोवेशन नहीं होता वहां पे, ठीक है। देर इज लिटिल ग्रोथ एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमेशा रहेगी, बट ब्रेक थ्रू इनोवेशन नहीं होगा क्योंकि हम कोशिशें नहीं कर रहे हैं कि कुछ बड़ा देखें, है ना। जो है उसको प्रॉपर यूज करते चले जा रहे हैं, इट्स अ गुड, ठीक है। अगर हम लीनियर ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं तो इट इज अ गुड, बट इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू बी देयर, राइट। देन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो यूजिंग जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, रीयूज एंड रिसाइकल, राइट। बट एट द सेम टाइम इट कैन लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनर एनवायरनमेंट, ठीक है। थॉट प्रोसेस एंड पर्सनल डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, और इससे पर्सनल डिसिप्लिन आता है, एग्जाम्पल है जैसे जमाइकन स्प्रिंटर्स जो है, ठीक है। whatever roads available है, टूटी फूटी रोड है, नॉन स्टैंडर्ड्स उस पे है, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर, ठीक है। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि बहुत कुछ ही लोग हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, जितना वहाँ पे पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन में बहुत थोड़े लोग पहुंच पाते हैं। रीजन फ्रस्ट्रेशन, राइट, कि उनको उतना वो मिल ही नहीं पाता है, एंड व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एम्पल रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये जो कर रहे हैं वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है फॉर एवरीवन। देन एक्सेप्टेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, इसकी बात है, विक्टर फ्रैंकल का एग्जांपल दिया मैंने, हॉलोकास्ट सर्वाइवर, ही वाज लाइक कि गिव अप नहीं किया मैंने एंड आई सर्वाइव्ड, ठीक है। बट वहां पे क्या कि सर्वाइवल तक ही उनका वो रहा, ग्रोथ का कोई एम्बिशन ही नहीं था, ठीक है। तो दैट इज वन। देन एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, ठीक है, जो इसके पॉजिटिव साइड में एग्जांपल है, मतलब ये सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट आई हैव गिवन लाइक 10-12 पॉइंट्स,
उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ऑल्दो लाइक देर आर सर्टेन पीपल हु विल बी क्रिटिसाइजिंग द अबव कोट, बट कुछ एग्जाम्पल्स है, ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनिस का एग्जाम्पल है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक क्राइसिस जोन में with whatever resources they are working with it and they are working in excellent manner, ठीक है। देन ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो इंडिया में होती है, यू कैन ऑलवेज यूज दैट कि क्या क्या बना है, यू कैन ब्रिंग सम एग्जांपल्स, ठीक है। देन दिस ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, उसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे। देन स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, काफ़ी हद तक स्क्रैप बेस्ड ही था इनिशियल स्टेजेस पे। देन श्रीकांत भोला का जो एग्जांपल है, देन जेन गैंडल चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, whatever resources she had she worked। तो आप इन सब एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं इन द आफ्टर जो 10-12 पॉइंट है उसके बाद के पॉइंट में, ठीक है, कि अपने ऐसे के पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट ही देते रहोगे तो ऐसे बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। आपको ऐसे के पॉजिटिव साइड में थोड़ा मतलब टिल्ट करना है, यू कैन डू इट लाइक दिस, देन यू कैन गिव हाउ इट कैन बी डन, ठीक है। तो ग्रोथ का माइंडसेट है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, स्मॉल अचीवेबल गोल से स्टार्ट करना। मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट के फेवर में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। देन ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन ऑन वट एवर यू हैव, जब तक उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होगे, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, जैसे एडिबल कटलरी है, ठीक है, नारायण पिस्पति, आई गेस I don't know how it is spelling, PERSAPATY, ठीक है। देन कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कम्युनिटी सपोर्ट, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, ये चीजें आप उसमें अपने प्री जो कंक्लूजन है, प्रिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, कंक्लूजन से पहले उसमें आप ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं टू गिव योर ऐसे बैलेंस, मतलब टिल्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, ठीक है। देन कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन में आप दोबारा से उसका जिक्र कर सकते हैं विलियम का, जो द बॉय हु हार्नेस्ड विंड वाला। एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू ऐड और आस्क इसमें? बोरिंग हो गया क्या? यस पूनम। Sir, could you please scroll through the entire document again? I will, एक मिनट। यस पूनम। सर जैसे इस तरह के जो ऐसे होते हैं उसमें हम जैसे अभी आपने स्टेटमेंट्स बना के लिखा है ना, कि बहुत लोग कहते हैं ना कि स्टेटमेंट बना के नहीं लिखना चाहिए। पॉइंट्स बना के लिखा मैंने, हेडिंग्स नहीं बनानी है, मैंने एग्जांपल के लिए हेडिंग डाली है, हेडिंग्स नहीं बनानी है, इसको एक पैराग्राफ में लिखना है ना, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको काउंटर करना है, देन अगेन, है ना। हेडिंग्स नहीं बनानी है, हेडिंग्स तो मैंने समझाने के लिए और ये तो मैंने अपनी याद के लिए लिखे है ना, नहीं तो मेरे को इतना थोड़ी याद रहेगा, है ना। दिस आर इनोवेशन इज वन टॉपिक, है ना, रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी है, तो आप इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, राइट। बट सर इसमें जब हम फ्लो लेके आएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, बिकॉज इस तरह के ऐसे हमने लिखे नहीं हैं, तो जब हम इस तरह के ऐसे को, क्योंकि बिल्कुल ही आप अलग डिमेंशन से अलग में स्विच होंगे तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। Yes, it is going to be a little difficult, but it will fetch you more marks, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा इस ऐसे को उस फॉर्म में लिखना, देखिए इट माइट बी अ रॉन्ग ऐसे टू बी चोजन टू राइट इन दिस वे, ठीक है, बट मेरे को तो ये इस बार आपको आपके साथ डिस्कस इस वे में करना था, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट लाइक दिस ना। नो सर, बट आई थिंक दिस इज द बेटर वे, बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अदर वे मतलब जैसे हम बाकी के फिलोसॉफिकल लिखते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी डिमेंशंस होती हैं टू एक्सप्लोर इन लाइफ, राइट। इसमें एक ही डिमेंशन में जाना है, तो एक ही डिमेंशन में जाओगे तो फिर उसी को ही बार बार अगर यही लिखे जा रहे हो कि करो करो करो, तो वो तो फिर इम्पैक्टफुल नहीं आएगा। डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, क्योंकि आपको ये शायद इसलिए भी लग रहा होगा कि प्रैक्टिस नहीं किया इस टाइप के ऐसे लिखने का, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट, है ना, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि यू माइट थिंक इट लाइक दिस। बट भी है रीजन बिंग, मतलब इतने टॉपर्स के पढ़ने के बाद मतलब ऐसे ऐसे बहुत कम और रेयर देखने को मिलते हैं आर्गुमेंट्स विद काउंटर आर्गुमेंट्स, हाँ बहुत रेयरली लिखे होते हैं, बट मुझे ये अप्रोच अच्छी लगती है, ठीक है। आई हैव यूज्ड दिस अप्रोच वंस, इट गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट देयर, क्योंकि पहले ऐसा प्रैक्टिस ज़्यादा किया नहीं था, इट आई बहुत रेयरली ऐसे ऐसे मैंने लिखना प्रैक्टिस किया,
तो इन 2018 आई रोट वन ऐसे लाइक दिस, मार्क्स तो ठीक ठाक आ गए थे, बट वहाँ पे आई थॉट कि यार आई चोज इट इन अ रॉन्ग वे, दिस वाज द रॉन्ग वे टू चूज देयर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की थी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कि अगर इस टाइप का लिखने का मन हो तो आई गेस कि अगर आप ये ऐसे इस टाइप से लिखोगे तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ ऐसे बढ़िया निकल के आएगा एंड मार्क्स अच्छे मिलेंगे उसमें। माई पर्सनल थॉट अगेन, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितना भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बहुत कम बच्चे इस टाइप से ऐसे को लिखते हैं, right? पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 में तो कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, राइट? इट इज बिटवीन द पॉइंट्स हाउ यू कैन यू नो लाइक आर्ग्यूमेंट टू काउंटर आर्ग्यूमेंट, है ना, दैट वहां पे थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 में जाने में तो यू कैन लाइक सिंपली, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट इज कि रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, है ना, तो वी कैन से कि बाय फोकसिंग ऑन व्हाट इज अवेलेबल, है ना, वी कैन बिकम रेजिलियंट अडॉप्टिंग टू द सर्कमस्टांसेस rather than being paralyzed by the limitations, ठीक है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे? some may argue that this approach can limit the ambition of a human being and it can promote contentment rather than striving for excellence and striving for more within the point। then second point तो simply आप जाओगे, जैसे next point है innovation, है ना, तो you can हो गया वहां पे फर्स्ट पॉइंट आपका एक्सप्लेन हो गया। मैं तो सिर्फ एक एक सेंटेंस बता रहा हूँ, आपको दो दो सेंटेंस लिख के एक एग्जांपल डालना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ आप सिंपली लिखेंगे वर्किंग विद इन लिमिटेशंस, है ना, जैसे इनोवेशन है, इट मे फोस्टर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ठीक है, व्हेन वी आर वर्किंग विद इन द लिमिटेशन, सो इट विल फोस्टर सम क्रिएटिव सॉल्यूशन एंड ब्रिंग इनोवेशंस। एग्जांपल जैसे अपोलो 13 का डाला मैंने, है ना। देन फिर इसका काउंटर आर्गुमेंट है, however relying on solely on whatever we have, है ना, that may stifle our ambitions, है ना, and we may not have a comprehensive solution, like अगर NASA would have planned it well already, ठीक है, और contingencies के लिए properly planned होता तो crisis could have been avoided totally। getting my point रुचिका, what I'm trying to say, right? तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नेविगेट करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम वुड बी नेविगेटिंग विद इन द पॉइंट, है ना। जो आप आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा क्रिटिक में आर्ग्यू, सम माइट आर्ग्यू, हाउएवर, अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है, इस टाइप के कुछ वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। 10-12 पॉइंट है, तो अगर आपके पास 7-8, जस्ट अ मिनट पूनम, है ना, 7-8 अगर वो है ऐसे कीवर्ड्स हैं तो यू कैन यूज इट, है ना, हाउएवर, है ना, लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है, फर्दर मोर वी ऑल्सो हैव टू लुक फ्रॉम दिस एंगल, ठीक है, तो उस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। यस पूनम, यही सर कहना चाह रही थी मैं कि वी कैन यूज दैट थ्रेड विच इज गिवन इन द कोट, कि जो हमें दिया है कि बेसिकली कि हमारे पास क्या है उसी को कनेक्ट कर करके एक डिमेंशन दूसरी पे स्विच हो सकते हैं, जो रुचिका पूछना चाह रहे थे कि कैसे करें। तो वो वाला जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना कि क्लाइंबिंग द माउंटेन में माउंटेन को अलग अलग तरह से मतलब अलग अलग डिमेंशन से उसी चीज को बार बार यूज करना। हाँ, वी कैन राइट इन दैट वे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन फॉर दिस? इस ऐसे के लिए देखो मटेरियल तो मैंने ठीक ठाक दे दिया आप लोगों को, है ना, इंट्रोडक्शन से लेके देन कनेक्शन एंड देन द पॉइंट्स एंड देन प्रिस्क्रिप्शन एंड देन कंक्लूजन में आप फिर से उसकी विल्यम मकवांगा की जो स्टोरी है, ठीक है, स्पेलिंग रट लेना, नाम आपसे कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है, या फिर एक बार लिख देना, आगे विलियम भी यूज करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट मोस्टली जब भी होता है इंटरनेशनल कोई हम यूज करते हैं तो मोस्टली जो सेकंड नेम होता है, जो सरनेम होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। विलियम इज वेरी कॉमन नेम, है ना, बट अगर आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका बुक का टाइटल या जो मूवी है उसका टाइटल, है ना, वो दे दोगे तो इट वुड बी इजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिंपल विलियम लिख दोगे तो नहीं पता चलेगा, या फिर पूरा नाम लिखो उसका, ठीक है। तो सिर्फ हेलन लिख दो, काम नहीं चलेगा, मिस केलर लिखोगे तो फिर भी लोग पहचान लेंगे, हेलन केलर इज बेटर वो, ठीक है। क्लियर है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अबाउट दिस ऐसे? बेसिक मटेरियल दे दिया, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगेन राइटिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि रिपीटेशन होने वाली है कुछ चीजों की विद इन द एसे, ठीक है।
बट फाइंड सम मोर एग्जांपल्स, मैंने एंड में 6-7 एग्जांपल्स अलग से भी लिखे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था पहले तो आपको राइट अप देने की, बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी नहीं दूंगा राइट अप,